गणपति बप्पा मोरया। आज हम आप सबको लेके जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के 4th डे सेलिब्रेशन के बीच, जहां आप सबको तो पता ही है कि पूजा आरती और वो सब डेली होता है। डेली हम सबसे पहली शुरुआत उससे ही करते हैं। आज मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगी, बट मैं आपको डायरेक्ट कल्चरल फेयर में लेके जाती हूँ। और आज का स्पेशल आपको पता है क्या है? आज है ट्रेडिशनल डे सेलिब्रेशन, जिसमें सब ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आएंगे, सब पार्टिसिपेट हो गए। बहुत से डांस भी है, सोलो है, ग्रुप है, कुछ स्पीच है, कुछ ड्रामा है। मतलब आज फुल ऑन मस्ती। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हुआ एक जोरदार ओपनिंग डांस परफॉर्मेंस, जिसमें इस छोटी बच्ची ने पूरे हॉल का माहौल रंगीन बना दिया था। आप भी इंजॉय करो और मैं भी करती हूँ। उसके बाद शुरू हुई ट्रेडिशनल डे सेलिब्रेशन, जहां हर पार्टिसिपेंट ने धूम मचा दी। अपने अपने परिवार के साथ स्टेज पर आए और उनके कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बताया, और सबने अपने अपने इंट्रोडक्शन दिए और फिर उनके कपड़ों के पहरवेश की परंपरा और कहानी शेयर की सबसे। जय माताजी, जय श्री कृष्ण बधाने। मारू नाम पे परिचय। My name is Shekhar. I am working in Brigade Distillery since 2012. She is my wife, named Shushmita, and they are my both sons. The first one, Gaudip Anantagari, and the second one, Mokshanandan Anantagari. Thank you very much. यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल डे ख़त्म हुआ और फिर बारी आई एक स्पीच, और इस बच्ची ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी और उसका टॉपिक था डोंट कंपेयर विथ So अदर्स। one day a crow was flying and saw a swan swimming in a pond and went on a tree branch near it and sat on it and saw the swan swimming in a nearby pond. Then some villagers went and saw the swan, and when the crow became suspicious and went near the pond, then the villagers chased it away, thinking that he will make the place dirty. Then the crow became very sad and went in the forest and sat on a branch crying. Then an old crow went to the crow and asked that, "Why are you crying?" Then the crow replied, "I am very ugly. I have very bad feathers. People don't love me." Then the old crow said that deep in the forest there is a spring where you can become whatever you want. Then the old crow asked the crow that, "What do you want to become?" The crow replied, "I want to become a swan." Then the old crow said, "Then why don't you go and ask the crow, the swan, that if it is happy to be a swan?" Then the crow flew to the swan and asked that, "Are you happy to be a swan?" Then the swan replied that, "I am not happy because people keep me as a pet. I don't have freedom. And when I get older, people will use me for my meat. And I don't know will I be still alive tomorrow or not." Then the crow asked the swan that, "Then who do you think the happiest bird might be?" Then the swan replied, "It must be a parrot because it has very colorful feathers and people don't eat it." Then the crow flew to the parrot and asked the parrot, "You might be the happiest bird in the village because you have very colorful feathers." Then the parrot replied, "I may have colorful feathers, but I am not happy because people keep me in cages and I don't have freedom." Then the crow also asked the parrot, "Then who might be the happiest bird in the village?" Then the parrot replied, "It must be a peacock because people keep them in big cages." Then the crow flew to a zoo and found a peacock and asked it that, "You must be the happiest bird because people give you freedom and you have very nice feathers." Then the peacock replied, "I am not happy because people pluck my feathers, and when they pluck them, it is very painful." Then the crow thought that, "I may have black feathers, but I'm very happy. I have freedom, people don't eat me."
So, the moral of the story is don't compare yourselves to others. Whether you're beautiful or you're not, but don't compare yourselves. फिर आई मेहर समाज की लेडीज़ों की बारी। वो आज ग्रुप डांस करने वाली थी। इस डांस को मेहर नो मनियारो ढाल तलवार से ये डांस किया जाता है और इसके पीछे का मतलब ये था कि लेडीज़ जो जगदम्बा का रूप लेके जंग में लड़ने जाती थी, इसी वजह से ये ढाल और तलवार से ये रास लिया जाता है।
सच में ये एक्ट फुल ऑफ ग्रेस और एनर्जी के साथ किया, बहुत ही मस्त था। आप भी ये परफॉर्मेंस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। लेडीज़ के बाद स्टेज संभालने के लिए जेंट्स की बारी आई। इन्होंने भी अपने ट्रेडिशनल डांस के साथ ऑडियंस और जज का दिल जीत लिया और इस डांस को शौर्य रास कहा जाता है, जो ये डांडिया के साथ खेलते हैं। मतलब ये पहले जब युद्ध में जाते थे और जीत के आते थे तो इसी तरह से उनका स्वागत किया जाता था, ये रास खेल के। आप सबको ये रास कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर और एक डांस हुआ लेडीज़ की तरफ से, उन्होंने ट्रेडिशनल डांस किया था। उनके साइड इस तरह से ट्रेडिशनल डांस होता है और ये भी उन्होंने एनर्जी के साथ किया और ऑडियंस की तरफ से तो वाह वाह और वंस मोर की चीख आने लगी थी। आप भी देखो उन्होंने कैसा डांस किया।
और फिर सबसे क्यूट मोमेंट, छोटे बच्चों ने अपने डांस परफॉर्मेंस देने आए। उनके ये इनोसेंट और छोटे छोटे स्टेप्स ने सबके दिल में जगह ले ली। आप भी देखो कैसे कर रहे हैं वो। और अब सबसे अंत में एक नाटक जो दिखाता है भगवान कृष्ण का जन्म और उनके बचपन से बड़े होने की यात्रा। हर सीन इतना सुंदर तैयार किया था और इतने अच्छे से उसे अनेक्ट किया गया था कि लग रहा था जैसे हम वापस वृंदावन में आ गए थे। इतना सुंदर से उन्होंने सबने मिलके किया था। आप भी देखो। इस तरह से फोर्थ डे का सेलिब्रेशन रहा, फुल ऑफ डिवोशन, कल्चर और एंटरटेनमेंट। आप सबको कौन कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गणपति बप्पा मोरिया।